Hello everyone, this is Siraj Khan. Welcome you all on behalf of Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Bandera. In today's lecture, we will see case number four for finding particular integral pi. In previous lecture, we have seen case number one, case number two, and case number three. And before moving to the case number four, I just want to make one thing clear. In case number one, we are having exponential function e to the power ax. In case number two, we are having trigonometric function sine ax or cos ax. And in case number three, we are having algebraic function x to the power m. And all these three cases, in all these three cases, there is one condition. Function should be free from any type of multiplication with other variables or functions. Constant अगर multiplication में रहा तो चलेगा, but कोई और function multiplication में नहीं आना चाहिए. Then and then only we can apply previous three cases. Now case number 4, it is for multiplication of exponential function with other functions. Case number 4, it is for multiplication of exponential function with other function. So suppose capital F of x equals to e to the power ax into v, multiplication of exponential function with other functions. Suppose v, it can be any one of previous cases, where v being any one of previous cases. v का value फिर से exponential हो सकता है, तो exponential into exponential अगर आता है तो we can combine it into a single exponential term. v it can be a sine function or cosine function. तो v के examples मैंने यहाँ पे लिखे हैं, या फिर exponential into v, इसके examples मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको. First example for exponential into v, that is f of x equals to e to the power ax into sine ax. Exponential into exponential, अगर v का value फिर से exponential अगर होता है तो we can combine them. e to the power x into e to the power bx, दोनों भी अगर exponential term अगर आते हैं तो we can write it as e to the power ax plus bx. And single exponential term के लिए हम case number 1 से solve कर सकते हैं, ठीक है. But if you are having exponential into sine ax, if you are having exponential into cos ax, if you are having exponential into x to the power m, also multiplication of exponential function with sine function, multiplication of exponential function with cos function, multiplication of exponential function with algebraic x to the power m also, or multiplication of exponential with any other function also. ठीक है. For all these things we can use case number 4. अभी ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल इनटू साइन कॉस या x टू द पावर m ही चाहिए. एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन किसी अदर फंक्शन के साथ भी अगर आता है जो ये तीनों से बिलोंग अगर नहीं करेगा, सपोज एक्सपोनेंशियल इनटू tan आ गया, एक्सपोनेंशियल इनटू log अगर आ गया, तो भी आप उसे केस नंबर 4 से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. बट द प्रोसेस फॉर सॉल्विंग इट इज हियर वी आर ओनली गोइंग टू डू वन चेंज. अगर केस नंबर 4 से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टार्टिंग में चेंज रहेगा, रिमेनिंग प्रोसीजर जो रहेगी वो आपको अदर केसेस की ही यूज करना है. इसके लिए कोई डिफरेंट अलग से कंप्लीट मेथड नहीं है. ओनली वी हैव टू डू वन चेंज हियर, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज other cases for getting the solution. So let's see what we have to do here. So if capital F of x, it is e to the power ax into v, then formula for pi, it is pi equals to 1 upon f of d operating on capital F of x. It will become 1 upon f of d operating on e to the power ax into v operating on exponential into other function. Now अब exponential और other function ऐसा प्रोडक्ट अगर आता है तो आपको करना क्या है? We have to bring this exponential term outside of this operator. Exponential को operator के बाहर लेकर आना है. Bring e to the power ax outside the operator. But अभी तक तो मैंने आपको बोला है कि हम ऑपरेटर के बाहर फंक्शन को नहीं ले सकते. ऑपरेटर d रहे या फिर 1 upon d रहे. We cannot bring the exponential function outside the operator. d means derivative, 1 upon d means integration. और d डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बाहर हम फंक्शन को नहीं ले सकते. But here I am saying that we have to bring the exponential term outside of this operator, but simultaneously in the same step you have to replace d by d plus a. Operator को बाहर तो लेना है, but we are taking it outside the operator, so due to this we have to change we have to do one extra change here, and that change is in operator we have to replace d by d plus a. सिंपल ऐसे नहीं कर सकते कि ऑपरेटर को फंक्शन को ऑपरेटर के बाहर ले लो और रिमेनिंग जो रहेगा उसमें कुछ भी चेंज मत करो, ऐसे नहीं कर सकते. बिकॉज
वी कैन नॉट ब्रिंग द फंक्शन आउटसाइड द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. सो बस सिर्फ इतना चेंज किया कि एक्सपोनेंशियल को ऑपरेटर के बाहर लिख दिया और रिमेनिंग टर्म में ऑपरेटर में या फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं किया, तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड थिंग. आपको आपको फंक्शन को ऑपरेटर के बाहर लेना है, एक्सपोनेंशियल को ऑपरेटर के बाहर लेना है, एंड इन दिस सेम स्टेप वी हैव टू डू वन एक्स्ट्रा चेंज, रिप्लेस d बाय d प्लस a. बस इतना मेथड जो है केस नंबर 4 में आपको परफॉर्म करना है, इतना एक स्टेप आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है. सो वी विल गेट हियर पी आई इट इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल अभी बाहर हो गया, हमने इसे ऑपरेटर से पहले लिख दिए, एंड रिमेनिंग जो ऑपरेटर अभी यहाँ पे था एफ ऑफ डी, तो डी के जगह पे हमें डी प्लस ए पुट करना है. तो जो कंप्लीट ऑपरेटर था इट विल नाउ इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ डी प्लस ए, जहां भी डी रहेगा वहां पे आपको डी प्लस ए रिप्लेस करना है. एंड व्हाट इज ए अगेन, हमने ये तो बोल दिया कि डी प्लस ए हमें चाहिए, बट व्हाट इज ए अगेन, तो ए इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो ये e टू द पावर ए एक्स बाहर आ गया, डी के जगह डी प्लस ए पुट कर दिया, एंड रिमेनिंग फंक्शन जो है v इट इज एज इट इज. ठीक है, सो दिस इज द सिंगल स्टेप विच वी हैव टू परफॉर्म इन केस नंबर 4. आफ्टर दैट, इसके बाद के जो रिमेनिंग स्टेप्स रह गए, so these remaining steps will depend on any one of previous cases. After this we have to use any one of previous cases to get the solution. अब इसके आगे का जो मेथड रहेगा वो डिपेंड करेगा v पे, जैसे v रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें इसके आगे सॉल्व करना है. अब सपोज v जो है वो अगर साइन ax होता है तो we have to solve it by using केस नंबर 2. v अगर cos ax अगर आता है तो अगेन we have to solve it by using केस नंबर 2. और v अगर algebraic x to the power m आता है तो we have to solve it by using केस नंबर 3. केस नंबर 4 में सिर्फ एक ही स्टेप था कि we have to bring the exponential function outside the operator, and after that we have to replace d by d plus a. बट ये होने के बाद अभी ये pi तो हमारे पास कंप्लीट आया नहीं है, बिकॉज ऑपरेटर d इट इज रिमेनिंग. जब तक d रिमेनिंग है तब तक हमें इसे सोल्व करना है. तो इसके आगे का जो मेथड रहेगा इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ दिस फंक्शन v. v अगर साइन फंक्शन रहा तो केस नंबर 2 से सोल्व करना है, कॉस फंक्शन रहा तो केस नंबर 2 से सोल्व करना है, और v अगर algebraic x to the power m आता है तो केस नंबर 1 से सोल्व करना है. ओके, नाउ टेकिंग अ प्रॉब्लम हियर, वी हैव टू सॉल्व d3y by dx cube minus 7 times dy by dx minus 6y equals to e to the power twice x into 1 plus x. So as usual we will start with the given differential equation. Now we know that if you want to get complete solution of this equation, then we have to convert it in terms of operator d. हमें d by dx के फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें ऑपरेटर d के फॉर्मेट में चाहिए. So using operator d, it can be written as first term d3y by dx cube, it will become d cube y, capital D cube y. Second term minus 7 times dy by dx, ये हो गया minus 7 times capital dy. Third term as it is minus 6y and right hand side as it is. Now we have to take y common from left hand side. Left hand side से हमें y common लेना है, dependent variable. तो remaining terms inside the bracket are d cube minus 7d minus 6. d cube minus 7d minus 6 operating on y equals to e to the power twice x in bracket 1 plus x. Now its complete solution is given by cs equal to cf plus pi. ऑपरेटर के फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया, मींस अभी हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं. एंड क्लियरली वी कैन सी दैट के डेरिवेटिव के जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे कांस्टेंट है. सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय cs equal to cf plus pi. First part we have to find cf, and for getting cf we need auxiliary equation. So its auxiliary equation is given by f of d equals to 0. अभी यहाँ पे f of d का वैल्यू चेक कर लेते हैं. व्हाट इज f of d here? So this bracket operator d cube minus 7d minus 6, it is f of d. d cube minus 7d minus 6, it is value of f of d. So d cube minus 7d minus 6 equal to 0. Now it's a cubic equation in terms of d. d cube लिखा है, मींस इसके 3 रूट्स आने चाहिए. And if you want to solve it by using calci, पहले भी इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं. d क्यूब, उसके बाद d स्क्वायर का टर्म चाहिए, फिर d का, और उसके बाद कांस्टेंट चाहिए. तो d स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो इसको मैंने यहाँ पे प्लस 0 d स्क्वायर एक टर्म यहाँ पे ऐड कर दिया. एंड नाउ वी कैन यूज कैल्सी फॉर गेटिंग इट सॉल्यूशन. तो अभी यहाँ पे d के 3 वैल्यूज आएंगे. वी आर गेटिंग हियर वैल्यूज ऑफ d एज d इक्वल टू 3, -1 एंड -2. सो ये d के 3 वैल्यूज हो गए. नाउ डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ दीज वैल्यूज वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर CF. अब ये वैल्यूज जो है तीनों भी वैल्यू रियल है, इमेजिनरी टर्म यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है.
and all three values are different, real भी है और different भी है. So therefore roots are real and different. So formula for CF, it will become first term, first root it is 3. तो 3 के लिए first term आएगा c1 into e to the power 3x. Second root it is -1. तो उसके लिए second term हो जाएगा plus c2 into e to the power -x. Third root it is -2. तो उसके लिए third term आ जाएगा plus c3 into e to the power -2x. So ये हो गया CF, first part complete हो गया. Second part, to find the PI. And for finding PI, the formula is PI equals to 1 upon f of d operating on capital F of x. तो पहले तो f of d का वैल्यू चाहिए. f of d का वैल्यू यहीं पे लिखा है d क्यूब माइनस 7d माइनस 6. इसके बाद कैपिटल f of x फंक्शन का वैल्यू चाहिए. So what is capital F of x here? Let's take it in the given problem. Capital F of x means right hand side of given problem. So e to the power twice x into 1 plus x. It is the capital F of x here. So substituting this value in the formula of PI. So ये capital F of x का value हो गया e to the power twice x into 1 plus e to the power x. और ये f of d का value हो गया d cube minus 7d minus 6. Now, अब जो capital F of x का value यहाँ पे हमने लिखा है, ये वैल्यू डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा केस यहाँ पे अप्लाई करना है. आइदर वी हैव टू अप्लाई हियर केस नंबर 1 और वी हैव टू अप्लाई हियर केस नंबर 2, या फिर हमें केस नंबर 3 अप्लाई करना है या केस नंबर 4 अप्लाई करना है. ये वैल्यू से हमें चेक करना होगा. सो अभी ये जो फंक्शन का वैल्यू हमने लिखा है, इट इज e टू द पावर ट्वाइस x into 1 plus x. एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म है e टू द पावर ट्वाइस x, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 plus x मींस इट इज अलजेब्रिक टर्म. 1 कांस्टेंट है, 1 को आप कैसे भी सॉल्व करो, दैट डजंट मैटर. एंड प्लस x इट इज द अलजेब्रिक टर्म. तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि e टू द पावर ट्वाइस x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इट विल बिकम e टू द पावर ट्वाइस x प्लस e टू द पावर ट्वाइस x into x. तो फर्स्ट e टू द पावर ट्वाइस x ये केस नंबर 1 से सॉल्व हो जाएगा, एंड देन e टू द पावर ट्वाइस x into x एक्सपोनेंशियल इनटू अदर फंक्शन. इसे आपको केस नंबर 4 से सॉल्व करना होगा. तो एक तो ये लॉजिक हो गया. सेकंड, कि एक्सपोनेंशियल को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, कीप इट एज इट इज. ये जो ब्रैकेट है 1 plus x, तो वी कैन कंसीडर दिस कंप्लीट ब्रैकेट एज v. ये 1 plus x जो कंप्लीट ब्रैकेट है, इसी को हम v कंसीडर कर लेते हैं. एंड वी आर हैविंग हियर प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद अदर फंक्शन v. सो कंप्लीट टर्म के ऊपर अभी हमें केस नंबर 4 अप्लाई करना है. हियर वी आर गोइंग टू यूज केस नंबर 4. अब केस नंबर 4 अप्लाई कैसे करना है? वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर केस नंबर 4. इट इज ऑफ द फॉर्मेट e टू द पावर ट्वाइस x into v. इस फॉर्मेट में भी यहाँ पे फंक्शन लिखा है v, इट इज 1 plus x. तो केस नंबर 4 अप्लाई कैसे करना है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था. फॉर अप्लाइंग केस नंबर 4, पहले तो हमें ये एक्सपोनेंशियल टर्म को ऑपरेटर के बाहर लिखना है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी रहेगा उसे ऑपरेटर के बाहर लेना है. बट डायरेक्टली हम कोई फंक्शन को डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते. वी आर डूइंग दिस हियर कि हम यहाँ पे फंक्शन को ऑपरेटर के बाहर ले रहे हैं. तो फिर हमें एक करस्पॉन्डिंग चेंज करना होगा, एंड दैट चेंज इज we have to replace d by d plus a. एक्सपोनेंशियल को बाहर तो लेना ही है. we have to bring exponential term outside the operator, but corresponding जो चेंज करना है, we have to replace d by d plus a. ऑपरेटर के अंदर d की जगह पे हमें d plus a रिप्लेस करना है. तो what is a? a it is coefficient of x in the exponential function. a it is coefficient of x in the exponential function. so अभी a का वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं. In this exponential function, coefficient of x it is 2. It means that कि value of a यहाँ पे जो है it is 2. तो हमें exponential को बाहर लेना है, and d की जगह पे अभी आपको यहाँ पे d plus a means d plus 2 रिप्लेस करना है. जहाँ कहीं भी d रहेगा उसके जगह पे d plus 2 रिप्लेस करना है. ओके, सो ये मैंने एज इट इज पहले टर्म लिख दिया. सेम टर्म पहले मैंने एज इट इज लिखा. अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ट्वाइस x जो लिखा है, ये ऑपरेटर के पहले आ जाएगा. ठीक है, एंड वी हैव टू रिप्लेस d बाय d प्लस a. तो d प्लस a का वैल्यू यहाँ पे है d प्लस 2. वैल्यू ऑफ a इट इज 2. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का कोएफिशिएंट जो है इट इज 2. तो d के जगह पे d प्लस 2 रिप्लेस करना है. तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर आ गया e टू द पावर ट्वाइस x इनटू द ऑपरेटर 1 अपॉन d क्यूब लिखा था, तो d शुड बी रिप्लेस बाय d प्लस 2. तो ये हो गया d प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब एज इट इज. ठीक है, d क्यूब प्लस 2 नहीं होगा, d को हमें d प्लस a से रिप्लेस करना है. तो d के जगह पे ये ब्रैकेट आ गया d प्लस 2 और उसका क्यूब.
ये एज इट इज, -7 टाइम्स डी, तो ये हो जाएगा -7 टाइम्स डी प्लस 2। डी के जगह पे कंप्लीट ब्रैकेट रिप्लेस करना है, डी प्लस 2, ठीक है, एंड -6 एज इट इज, एंड रिमेनिंग फंक्शन v का जो वैल्यू था रिमेनिंग फंक्शन वो एज इट इज 1 प्लस x, ये रिमेनिंग फंक्शन एज इट इज. So in this way we have applied here case number 4. Again I am repeating it for one time. So exponential function को पहले बाहर लिखना है, ये e to the power twice x जो है ये ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल बाहर हो गया. नाउ वी हैव टू रिप्लेस d बाय d प्लस a, ये हमें रिप्लेस करना है, मीन्स वी हैव टू रिप्लेस d बाय d plus 2 because here value of a it is equal to 2. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर x का जो कोएफिशिएंट है इट इज 2, तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, तो अभी हमें d की जगह पे d प्लस 2 ये कंप्लीट ब्रैकेट रिप्लेस करना है. तो ऑपरेटर के अंदर का फर्स्ट टर्म जो है इट इज d क्यूब, तो ये हो गया d प्लस 2 होल क्यूब, -7 टाइम्स d, तो ये आ गया -7 टाइम्स d प्लस 2, -6 एज इट इज, एंड रिमेनिंग जो फंक्शन था 1 प्लस एक्स, सिर्फ हमने ऑपरेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाहर लिया, रिमेनिंग जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स इट इज एज इट इज. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? आफ्टर दैट नाउ बिफोर गोइंग टू द रिमेनिंग फंक्शन, अब जो रिमेनिंग फंक्शन है इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे डिफरेंट केसेस अप्लाई करना है. यहाँ पे जो रिमेनिंग फंक्शन रहेगा एक्सपोनेंशियल बाहर आ गया, मीन्स जो प्रोडक्ट था वो अभी सॉल्व हो गया. केस नंबर 1 अप्लाई करना है तो हमें फंक्शन सेपरेट चाहिए विदाउट एनी प्रोडक्ट. केस नंबर 2 अप्लाई करना है तो फंक्शन सेपरेट चाहिए विदाउट एनी प्रोडक्ट. अगेन केस नंबर 3 भी अगर अप्लाई करना है तो हमें फंक्शन सेपरेट चाहिए विदाउट एनी प्रोडक्ट. तो एक्सपोनेंशियल इनटू अदर फंक्शन वी आर हैविंग अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अभी यहाँ पे सोल्व हो गया. अभी सिर्फ यहाँ पे सिंपल फंक्शन है 1 प्लस एक्स एंड इट इज द अलजेब्राइक फंक्शन. तो अलजेब्राइक फंक्शन मींस केस नंबर 3 से हमें इसे सोल्व करना है. सो बिफोर अप्लाइंग द प्रोसीजर ऑफ केस नंबर 3, पहले ये ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले ऑपरेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे, बिकॉज ऑपरेटर अभी जो लिखा है यहाँ पे अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में लग रहा है. डी प्लस 2 होल क्यूब, -7 टाइम्स डी प्लस 2, और उसके बाद फिर -6. केस नंबर 3 अगर अप्लाई करना है तो वी नो डैट फॉर अप्लाइंग केस नंबर 3 वी हैव टू टेक लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन. तो लोएस्ट डिग्री टर्म आप कॉमन ले सकते हो, बट व्हाट इज द लोएस्ट डिग्री टर्म ये अभी हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ -6 है, बट इट इज नॉट द ओनली कांस्टेंट टर्म. अगर ये मिडिल ब्रैकेट को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -14, 7 टू 14, ये भी एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा. डी प्लस 2 होल क्यूब इससे अगर एक्सपांड किया तो इसके अंदर भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा. तो पहले तो ऑपरेटर को सिंप्लीफाई करना है, और ऑपरेटर सिंप्लीफाई होने के बाद केस नंबर 3 हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. So simplifying the operator, for that on first bracket we have to use the formula of a plus b whole cube. So we know that a plus b whole cube equals to a cube plus 3a square b plus 3ab square and plus b cube. It is the formula. अब ये फॉर्मूले से हमें फर्स्ट ब्रैकेट को एक्सपांड करना है, d plus 2 होल क्यूब, तो pi it will become e to the power twice x, जो एक्सपोनेंशियल टर्म हमने बाहर लिया था ऑपरेटर के, ये एज इट इज बाहर ही रहेगा, 1 अपॉन डी प्लस 2 होल क्यूब, तो ए क्यूब ये आ गया डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ए इट इज डी एंड बी इट इज इक्वल टू 2, तो 3a स्क्वायर इंटू बी, तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर इंटू 2, 3d स्क्वायर इंटू 2 एंड प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, तो 3d इंटू 2 स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब लास्ट टर्म, तो ये हो गया प्लस 2 क्यूब. आफ्टर दैट -7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, -7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो इट इज -17 -14 एंड लास्ट टर्म -6 एज इट इज, फंक्शन 1 प्लस एक्स इट इज ऑल्सो एज इट इज. नाउ अगेन वी कैन सिंप्लीफाई इट, pi equals to exponential function as it is 1 upon d cube as it is 3d square into 2, so it is 6d square plus 3d into 2 square, so 2 square it is 4, 4 3 is 12, तो ये हो गया 12d and plus 2 cube, 2 cube का वैल्यू आ गया 8. आफ्टर दैट -7d it is as it is and -14 and -6, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, -14 -6 it is -20. और सिंप्लीफाई हो सकता है, exponential term as it is 1 upon d cube as it is plus 6d square as it is. Now
12d and minus 7d. 12d minus 7d, it is plus 5d. And plus 8 minus 20. Plus 8 minus 20, it is minus 12. And operating on function 1 plus x, it is as it is. तो ये हो गया simplified format of the operator. अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू सोल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग केस नंबर 3. ठीक है. सो वी आर हैविंग द ऑपरेटर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्मेट. जितने भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता था वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया. नाउ रिमेनिंग डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रिमेनिंग फंक्शन, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रिमेनिंग फंक्शन. तो रिमेनिंग फंक्शन इट इज 1 प्लस एक्स एंड इट इज अल्जेब्राइक. 1 इट इज अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट को हम केस नंबर 1 से सोल्व कर सकते हैं, केस नंबर 2 से भी सोल्व कर सकते हैं, केस नंबर 3 से भी सोल्व कर सकते हैं. सपोज वी आर सोल्विंग इट हियर बाय यूजिंग केस नंबर 3, क्योंकि सेकंड टर्म जो x है उससे केस नंबर 3 से सोल्व करना है. तो फर्स्ट टर्म 1 को अगर कोई दूसरे केस अगर अप्लाई करेंगे तो फिर से वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा. 1 को ऐसा लिख सकते हैं हम x टू द पावर 0. तो सपोज इट हैज, अभी जो ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 1. मींस जो कंप्लीट ब्रैकेट है इट इज नाउ इन अल्जेब्राइक फॉर्मेट. So we can solve it by using case number 3. अभी इसे हम case number 3 से solve कर सकते हैं. And now if you want to apply case number 3, so for that we have to convert the operator in terms of 1 plus t or 1 minus t. Case number 3 अगर अप्लाई करना है तो ऑपरेटर को हमें 1 plus t या फिर 1 minus t के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. 1 चाहिए. अब यहाँ पे जो ऑपरेटर है नीचे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, इसमें तो कहीं पे भी 1 नहीं है. मीन्स हमें 1 लेकर आना है. अब 1 लेकर आना है तो फॉर दैट वी हैव टू टेक द लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन. सो नाउ बाय केस नंबर 3 वी हैव टू टेक लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन फ्रॉम द ऑपरेटर. चेक करते हैं कि व्हाट इज द लोएस्ट डिग्री टर्म. फर्स्ट टर्म इज हैविंग डिग्री 3, सेकंड टर्म इज हैविंग डिग्री 2, थर्ड टर्म इज हैविंग डिग्री 1 एंड लास्ट टर्म -12 इट इज हैविंग डिग्री 0. तो लोएस्ट डिग्री टर्म अभी यहाँ पे हो जाएगा -12. हमें -12 कॉमन लेना है, +12 कॉमन लेना नहीं है. -12 कॉमन लेना है सो दैट रिमेनिंग टर्म यहाँ पे +1 आना चाहिए. हमें 1 plus t या 1 minus t चाहिए. 1 हमेशा प्लस चाहिए. ठीक है. तो टेकिंग लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन फ्रॉम हियर, तो -12 को अभी यहाँ से कॉमन लेना है. तो ये e टू द पावर ट्वाइस एक्स एज इट इज ऑपरेटर के बाहर का 1 अपॉन -12. ये लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन आ गया. रिमेनिंग d³ प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन -12. जो टर्म हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दो और लास्ट में -12 की जगह पे जो रिमेनिंग रहेगा इट इज +1 एंड फंक्शन 1 plus x it is also as it is. Now after that taking reciprocal of this bracket, अब ये ब्रैकेट को डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में लेकर आना है. टेकिंग रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन -12 ये एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ द ब्रैकेट तो ये हो गया ब्रैकेट टू द पावर -1 ऑपरेटिंग ऑन द फंक्शन इट इज एज इट इज. नाउ आफ्टर दैट d³ प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन -12. ये यहाँ पे -12 है तो ये माइनस को हम बाहर पहले लिख सकते हैं, टर्म के पहले लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ d³ प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 12 एंड +1. ये माइनस सिर्फ यहाँ पे बाहर आ गया. ठीक है. आफ्टर दैट अभी हमें एक्सपांशन अगर अप्लाई करना है, बाइनोमियल एक्सपांशन, तो फॉर दैट वी नीड द फंक्शन इन द फॉर्मेट 1 plus t ब्रैकेट टू द पावर -1 या फिर 1 minus t ब्रैकेट टू द पावर -1. हमें 1 पहले चाहिए, उसके बाद में रिमेनिंग फंक्शन चाहिए. तो ये 1 को पहले लेकर आ जाओ और माइनस ये जो d³ की टर्म है कंप्लीट ब्रैकेट है इसको बाद में लिख लो. टर्म्स को इंटरचेंज करना है. तो -1 अपॉन 12 e टू द पावर ट्वाइस एक्स इन ब्रैकेट 1 minus now d³ plus 6d square plus 5d upon 12 and bracket to the power -1 operating on 1 plus e to the power x. And now in this way it is converted in the form of 1 minus t bracket to the power -1. ये फॉर्मेट में अभी कन्वर्ट हो गया. It is 1 and it is minus t. ठीक है. So now we can apply here binomial expansion and we know that by using binomial expansion 1 minus t bracket to the power -1 equals to 1 plus t square plus t cube plus and so on. Means all the terms in the expansion will be positive. All the terms in the expansion will be positive. अभी प्लस माइनस टर्म्स नहीं रहेंगे. ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया मींस एक्सपांशन के अंदर की सभी टर्म्स राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव रहेगी. बट अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखना कितने हैं? हाउ मच टर्म्स वी विल राइट इन द एक्सपांशन? t टू द पावर 1 तक लिखना है या फिर t टू द पावर 2 तक लिखना है या फिर t टू द पावर 3 तक लिखना है? टोटल टर्म्स कितने लिखना है? तो उसके लिए हमें चेक करना होगा वेरिएबल x का पावर. तो यहाँ पे 1 plus x मींस पावर ऑफ x इट इज 1.
पावर ऑफ x इट इज 1, इट मींस दैट कि हमें सिर्फ t टू द पावर 1 तक की ही टर्म्स लिखना है, इसके आगे के जितने टर्म्स रहेंगे वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मींस एक्सपेंशन में सिर्फ दो टर्म आएंगे, 1 प्लस t, एंड व्हाट इज t? तो t इज दिस ब्रैकेट हियर, t is this bracket here. Using this formula, now pi it will become minus 1 upon 12 e to the power twice x in bracket 1 and plus it is the value of t and plus and so on operating on function 1 plus x. It is as it is. तो x का पावर 1 था, दैट्स वाई हमने सिर्फ ब्रैकेट टू द पावर 1 तक ही टर्म्स लिखी है, इसके आगे की सभी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मींस ये कंटिन्यूएशन का जो सिंबल है ये भी यहां से रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन अभी ये जो ऑपरेटर है डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 5d अपॉन 12, फिर से इसे सिंप्लीफाई करना है। अभी सिंप्लीफिकेशन मींस वी कैन सेपरेट इट फ्रॉम दिस प्लस साइन, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू सेपरेट इट। अभी बिफोर सेपरेटिंग द टर्म्स, हियर वी आर हैविंग d क्यूब, हियर वी आर हैविंग d², हियर वी आर हैविंग d टू द पावर 1। d क्यूब मींस थर्ड डेरिवेटिव, d² मींस सेकंड डेरिवेटिव, d मींस फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अगेन पावर ऑफ वेरिएबल x इट इज 1, x का पावर 1 है, मींस d टू द पावर 1 तक के ही टर्म्स हमें चाहिए, इससे ज्यादा जो भी डेरिवेटिव रहेगी वो सब जीरो हो जाएगी। 1 प्लस एक्स का अगर हमें डेरिवेटिव लेना है, सपोज इफ यू वांट टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, देन 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। अब इसके आगे अगर सेकंड डेरिवेटिव लिया तो 1 का 0 हो जाएगा, थर्ड लिया तो भी 0 हो जाएगा। इट मींस दैट कि अभी हमें यहाँ से हायर डेरिवेटिव्स को रिमूव करना है। हायर डेरिवेटिव मींस डी क्यूब का टर्म ये 0 हो जाएगा, d² का टर्म ये भी 0 हो जाएगा। So remaining pi it is equal to minus 1 by 12 e to the power twice x in bracket 1 plus 0 plus 5d upon 12 and operating on function 1 plus x as it is. Now again we can simplify it as minus 1 by 12 e to the power twice x in bracket 1 plus, now 0 0 it will be get removed, remaining 5 by 12d operating on 1 plus e to the 1 plus x. अभी ये 1 प्लस एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पी आई इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन 12 e टू द पावर ट्वाइस एक्स इन ब्रैकेट, ये फर्स्ट टर्म आ गया 1 प्लस एक्स। इसके बाद ये 1 प्लस एक्स को ऑपरेटर डी से ऑपरेट करना है, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 12 इनटू डी ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फर्स्ट 1 अपॉन एक्स ये तो एज इट इज रहेगा, एंड डी ऑफ 1 अपॉन एक्स ये हमें कैलकुलेट करना है, तो डी इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, यहीं पे हमने लिखा है डी ऑफ 1 अपॉन एक्स, डी ऑफ 1 अपॉन एक्स, डी मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1, मींस डी ऑफ 1 अपॉन एक्स इट इज 1। सो फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस एक्स एज इट इज प्लस 5 by 12, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, नाउ अभी ये 5 by 12 and into this bracket 1 it will be only 5 by 12, so pi it is equal to minus 1 by 12 e to the power twice x in bracket 1 plus x plus 5 by 12। अभी कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर दो, 1 और 5 by 12 दोनों का एडिशन कर दो, it will become pi equals to minus 1 upon 12 e to the power twice x in bracket x plus 17 by 12। 1 plus 5 by 12 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो ये 17 by 12 हो जाएगा, डायरेक्टली कैलसी से ऐड किया तो भी चलेगा। सो नाउ अभी कंप्लीट इक्वेशन से डी ऑपरेटर डी जो था वो रिमूव हो गया, इट मींस दैट वी गॉट द सॉल्यूशन, सो इट इज द पीआई फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फाइनली रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय cs इक्वल टू cf प्लस पीआई। यहाँ पे cf का वैल्यू पुट करना है और पीआई का वैल्यू पुट करना है, तो cf का वैल्यू है c1 e to the power 3x प्लस c2 e to the power minus x प्लस c3 e to the power minus twice x and plus value of pi it is minus 1 by 12 e to the power twice x in bracket x plus 17 by 12, and which is the required solution of given differential equation. So in this way we can apply case number 4. Case number 4, it is used for finding pi if capital F of x is product of exponential function with other function. v जो other function है इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है, बट फर्स्ट फंक्शन शुड बी कंपल्सरीली एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट फंक्शन ये कंपल्सरीली एक्सपोनेंशियल ही चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल की जगह पे साइन है और सेकंड v की जगह पे x है, साइन इनटू x, ऐसे नहीं चलेगा। फर्स्ट हमें एक्सपोनेंशियल ही चाहिए और v में कुछ भी चेंज हो सकता है। और केस नंबर 4 अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक चेंज करना है कि एक्सपोनेंशियल को ऑपरेटर से बाहर
bring exponential outside of operator, and after that replace d by d plus a. बस ये दो चेंजेस हमें केस नंबर 4 में करना है। एक तो एक्सपोनेंशियल को ऑपरेटर के बाहर लिख लो एंड रिप्लेस d बाय d प्लस a। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रोसीजर रहेगा वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ v पर। v अगर साइन कॉस आता है तो केस नंबर 2 से सोल्व करना है। v अगर x टू द पावर 1 x स्क्वायर x क्यूब मींस अलजेब्राइक फंक्शन अगर आता है तो केस नंबर 3 से सोल्व करना है। दैट्स ऑल। ओके, सो विद दैट we will stop here. Thank you very much.